नमस्कार, वंदे मातरम। आज का जो टॉपिक है हमारे इस वीडियो का वो है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म का मतलब होता है जब एमनियोटिक फ्लूइड यूट्राइन कैविटी से वेनस सिस्टम में चला जाता है, ब्लड में सर्कुलेशन में चला जाता है और वहाँ वेनस सिस्टम से फिर उसके पास जो पहला फ़िल्टर पहुँचता है वो पहुँचता है लंग्स में। लंग्स की जो फिर उसकी कैपिलरीज होती है वहाँ जाके वो अटक जाता है और जब वो वहाँ जाके अटक जाता है तो उसकी वजह से जो होने वाली तकलीफ़ें हैं उसको हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। So this amniotic fluid embolism, although it is very rare, you can see that in around 1 lakh deliveries only 2 to 3.3 cases are reported. Isn't it very rare? Yes, it is very rare. But why this is important? This is important if you are a student, then it is important from some points which is very much important in the diagnosis and management, and they may be asked in your MCQ exams, or even it can be asked in your Viva questions. And if you are a clinician, definitely now if you are a student, अभी आप स्टूडेंट हैं, कुछ सालों बाद आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी जाएंगे, तो उस समय आपको ये एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म इसलिए इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ये बहुत रेयर है बट उसकी मैटरनल मॉर्टेलिटी जो है दैट इज़ वेरी हाई। मैटरनल मॉर्टेलिटी और पेरीनेटल मॉर्टेलिटी दोनों ही बहुत हाई होती हैं, जिसकी वजह से अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है, इफ़ यू डू नॉट हैव द वर्किंग नॉलेज, यू कैन नॉट डायग्नोज इट टाइमली, एंड इफ़ यू डू नॉट डायग्नोज इट टाइमली देन उसमें आपको जो ट्रीटमेंट देना है आप उसमें भी मिस कर जाएंगे, एंड इवन 5 मिनट डिले विल कॉस्ट द वुमेन हर लाइफ। ऑल्दो ईच एंड एवरी मॉर्टेलिटी occurring because of this amniotic fluid embolism is not preventable, even if you are doing your best efforts. But being a graduate or a postgraduate in this topic or in medical studies, you should be aware about this amniotic fluid embolism, because if you take the efforts timely, you may save the life of the woman and also of the baby to some extent. Although it is not 100% preventable, but still that's why the knowledge is important. If you are a student, there are certain points that are very important and you should be aware of, and it may be asked in your exams. And if you are a clinician, then you will be able to save a life. Now what is the maternal mortality rate? It is around 20 to 35% maternal mortality it has got, and perinatal mortality is around 13.5 to 32%. So you can see that the mortality rate in both maternal as well as perinatal, मदर की और उसके जो बच्चे की, दोनों की ही जान को इसमें बहुत अधिक खतरा होता है, इसलिए इसकी नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है। एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि इवन इफ इट इज़ सो मच रेयर, इट ऑकर्स इन अराउंड 2 to 3.3 cases in 1 lakh deliveries. Still, if you analyze the data of maternal mortality in developed countries, there you can see that 7 to 10% of the maternal mortality is occurring because of this amniotic fluid embolism. So because it has got a very high mortality rate, maternal as well as perinatal, and it is very, although rare, you should be aware of this entity so that you can take timely steps which will help your patient. Now इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे ही किसी भी बीमारी के या किसी भी जो आपकी कॉम्प्लिकेशन हो रही है उसके देयर आर रिस्क फैक्टर्स। इसके भी कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, देयर आर 4 रिस्क फैक्टर्स। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज, कैन बी आस्क्ड इन योर MCQ एग्ज़ाम। तो इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, नंबर 1 इज़ इंडक्शन ऑफ लेबर। इफ़ यू आर डूइंग इंडक्शन ऑफ लेबर, देयर आर 3 to 4 fold increase in this incidence of amniotic fluid embolism. So induction of labor अगर किसी में हो रहा है, so you should be very much vigilant कि इसमें आपका that she is a high risk and you have to be vigilant enough. Now another risk factor is cesarean delivery. Cesarean delivery में almost 8% 8-fold increase इसके incidence का amniotic fluid embolism का हो जाता है। Now what next? मल्टीपल प्रेगनेंसी अगर किसी में है उसमें भी अराउंड 8 to 10 fold
इंसिडेंस का राइज होता है इन दिस एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म. एंड फोर्थ वन इज elderly age and multiparity. So these are the risk factors you should be aware of. It can be asked in your MCQ. एक तो, now come on, let's repeat with me. Number 1 is amniotic, this induction of labor, especially after doing amniotomy. If you are doing amniotomy, उसके बाद में patient को amniotic fluid embolism हो जाता है. So you have to observe the woman, and if she presents with the symptom, तो आपको क्विक एक्शन लेना है, जो कि हम अभी मैनेजमेंट पार्ट में देखेंगे. सो सबसे पहली बात, इंडक्शन ऑफ लेबर अगर हो रहा है तो यू हैव टू बी कीप दिस इन योर माइंड दैट शी हैज़ हायर रिस्क ऑफ गेटिंग दिस एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म. सेकेंड इज मल्टीपल प्रेगनेंसी. थर्ड इज हर मल्टीपैरिटी एंड हायर एज. एंड फोर्थ वन इज सिजेरियन सेक्शन. when you are doing cesarean section, when you are opening the uterus, then she may develop that signs of this amniotic fluid embolism. Fortunately at that time anesthetist भी वहाँ available होता है, so this problem can be taken care of effectively at that time, but it increases the risk. So these are the 4 risk factors, and now we are going to start about the pathophysiology. Now coming to the pathophysiology of this amniotic fluid embolism, कि वहाँ एक्चुअल में बॉडी में क्या हो रहा है जिसकी वजह से यह जो कंडीशन है ये इतनी सीरियस क्यों है, इसमें मॉर्टेलिटी रेट इतना हाई क्यों है, तो और इसमें इतना क्विक जो रिस्पॉन्स एक वुमेन का होता है इस डिसीज़ प्रोसेस के लिए वो इतना क्विकली क्यों होता है. जब तक हम उसकी पैथोफिजियोलॉजी को नहीं समझेंगे हम उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे कि हो क्या रहा है, वेयर इज़ द पैथोलॉजी एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वुमेन्स बॉडी. सो लेट्स स्टार्ट. ऑल्दो हम जानते हैं कि यूजुअली थोड़े बहुत फीटल स्क्वैम्स मदर के ब्लड में होते हैं, लेकिन उससे हमें इतनी समस्या नहीं होती. जब एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होता है तो एक ह्यूज अमाउंट जो है वो आपके वेनस सर्कुलेशन में चला जाता है, मदर की वेनस सर्कुलेशन में, और वहाँ से फिर वो जो फर्स्ट फिल्टर होता है दैट इज़ लंग्स. तो जब वो लंग्स में पहुँचता है और वहाँ पे लंग्स में पहुँचने के बाद जब वो कैपिलरीज़ में डिवाइड होता है तो उन कैपिलरीज़ में, पल्मोनरी कैपिलरीज़ में क्या होता है, ये फीटल स्क्वैम्स और जो टिश्यू होता है वो जाके ब्लॉक कर देता है. और जब क्योंकि ये थोड़ी अधिक मात्रा में होता है तो ये जो ब्लॉकेज है एक्यूट पल्मोनरी वैस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन इसमें इनिशिएटिंग पार्ट है, जो इनिशिएटिंग इवेंट है दीज फीटल स्क्वेम्स. ये इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि दिस कैन बी आस्क्ड इन योर MCQ. किसी तरीके से घुमा फिरा के वो पूछ सकते हैं, तो आपको अगर इसकी डिटेल पता है तो यू विल बी एबल टू क्रैक द आंसर. सो सबसे पहला स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप इज़ एक्यूट पल्मोनरी वैस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन. उसकी वजह से क्या होगा, जब आगे ब्लॉकेज हो जाएगा तो पीछे से वो प्रेशर बढ़ा के उस ब्लॉकेज से आगे बढ़ने की कोशिश करेगी बॉडी. सो व्हाट इज़ हैपनिंग, इमीडिएटली देयर ऑकर्स हाइपरटेंशन, एंड दिस हाइपरटेंशन इज देन फॉलोड, क्योंकि वो ब्लॉकेज है वो आगे जा ही नहीं पाएगा तो वो ब्लॉकेज खुलता नहीं है. देन ऑकर्स व्हाट, कोर पल्मोनेल, एंड ये बहुत ही ट्रांजिएंट है, बहुत फटाफट होता है. और कोर पल्मोनेल के बाद में क्या होगा, देन देयर इज़ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, क्योंकि आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ही नहीं पहुंचेगा, वहाँ से वो आगे पंप ही नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन एंड शॉक. सो वुमेन लैंड्स इनटू हाइपोटेंशन एंड हाइपोटेंसिव शॉक वेरी क्विकली. ये तो एक साइड आपका चल रहा है. इसका क्या है, फर्स्ट इनिशिएशन जो हो रहा है दैट इज़ एक्यूट पल्मोनरी वैस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन. ये आपको याद रखने की चीज़ है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट इवेंट दैट इज़ ऑकरिंग इन द वुमेन्स बॉडी इन एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म. So this is leading to left ventricular failure. This is also important. It can be asked in your MCQ कि amniotic fluid embolism में left ventricular failure होता है. So hypotension and shock. Ultimately woman lands into shock. साथ ही साथ ये केवल शॉक नहीं है कि बस एक शॉक हुआ, आपने शॉक का क्या करेंगे, आप उसको फ्लूइड दे देंगे तो आप सोचेंगे कि सब ठीक हो गया. नहीं, ऐसा नहीं है कि आप उसका इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड अगर आप उसको दे रहे हो तो वो ठीक हो जाएगी. दिस इज़ वन पार्ट दैट इज़ ऑकरिंग साइमल्टेनियसली. वहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये फीटल स्क्वैम्स आपके वस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, पल्मोनरी वस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन, वहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस फीटल स्क्वैम्स एंड अदर tissue factors which are present in the amniotic fluid,
व्हाट इज़ हैपनिंग, वो कहाँ फंस रहे हैं, वो कैपिलरी एंडोथेलियम में फंस रहे हैं, और एंडो कैपिलरी में, और कैपिलरी इज़ लाइंड बाय एंडोथेलियम, एंडोथेलियम इंजरी हो रही है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है वहाँ पे, जो वो कैपिलरीज जहाँ पे ये ब्लॉक हुए हैं वहाँ पे वो केवल ब्लॉकेज नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे साथ साथ वो एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी बढ़ा रहे हैं। इसको क्लिनिकली इट कैन मिमिक एज एनाफाइलेक्टिक और सेप्टिक शॉक, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि क्लिनिकल कोर्स क्या चल रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज़ नॉट एनाफाइलेक्टिक, आपने कोई उसको नया तुरंत ड्रग नहीं दी है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। अदरवाइज़ क्लिनिकली अगर आप देखेंगे कोई बाहर का पर्सन आ रहा है जिसको महिला के बारे में, उसकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में, या उसकी ट्रीटमेंट हिस्ट्री, या लेबर में जो ड्यूरेशन में उसके साथ जो जो हुआ है, अगर उसको उसके बारे में नहीं पता, सो यू कैन नॉट जस्ट सी एंड टेल कि ये समस्या है। इट कैन मिमिक एनाफाइलेक्टिक और एज वेल एज सेप्टिक शॉक ऑल्सो। सो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जब आपके पल्मोनरी वेस्कुलेचर में हो रहा है तो वहाँ एंडोथेलियम में डैमेज होता है, और वहाँ से आपका जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से क्या होगा कि वो बैरियर, आपका जो परफ्यूजन हो रहा है ऑक्सीजन का वहाँ पे, वो आपका रुक जाएगा। मान लीजिए आपका किसी वजह से ये स्क्वेम्स जो हैं ये आगे चले भी जाते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो हुआ है, जो एंडोथेलियल इंजरी जो हुई है वहाँ पे, उसकी वजह से उसका जो वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच होता है बहुत बड़े एरिया में, क्योंकि वह बहुत सारा गया है, बहुत सारे एरिया में गया है, तो वो आपका वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच होता है, जिसकी वजह से द वुमन लैंड्स इनटू हाइपोक्सिया। एंड वो सब भी बहुत क्विकली हो रहा है, जैसे जितना ये क्विकली चल रहा है ये भी क्विकली चल रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस हाइपोक्सिया शी में हैव आइदर कन्वर्जन और शी में लैंड इनटू कोमा। सो शी इज़ ऑल्सो हैविंग हाइपोटेंशन शॉक एंड शी इज़ ऑल्सो गिविंग थ्रू कन्वर्जन। सो you may confuse, suppose if a woman is this severe preeclampsia, she is admitted with you, and after, if you are doing amniotomy and she lands into, she throws away convulsion, तो आपको क्या लगेगा कि ये severe preeclampsia has turned into eclampsia, right? सबसे पहले दिमाग में यही आएगा। बट इफ़ यू कैन कोरिलेट कि मैंने अभी एमनियोटॉमी की है, उसके बाद इसको कन्वर्जन आया है, एंड यू आर अगेन डूइंग हर बीपी एंड शी इज़ इन हाइपोटेंशन, सो यू विल क्विकली अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ नॉट एक्लेम्शिया एंड दिस इज़ amniotic fluid embolism. Although you will give her magnesium sulfate, yes, because every woman who is coming to you in labor room with history of convulsion, you have to give magnesium sulfate. You will give magnesium sulfate, but it will take some time. Immediately you will start her resuscitation, क्योंकि ये बहुत ही क्विक होता है। विदिन 5 minutes अगर आपका इसमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, देन यू हैव टू गो टू अनदर स्टेप. ऑल्सो वी विल लुक इन टू द management part. And what else is also, if suppose woman survives first hour of this amniotic fluid embolism, although it is rare, we have seen the high maternal mortality rate, but if somehow she survives, उसने 1 घंटा निकाल दिया, then what next? Don't think कि हाँ भैया जो बुरा समय था वो निकल गया, now she is safe. Now she will land in DIC because of this acute inflammatory response जो वहाँ पे हुआ है. It will trigger the this coagulation factors को trigger करेगा intravascular, and she will land into DIC. So you have to take care of this also. So amniotic fluid embolism survivor अगर है तो she will have this DIC, very high chances of getting DIC. सो आपको अगर ये ट्रीटमेंट आपको आया है डायग्नोसिस में, तो इसके लिए फिर आप तैयार रहिए. ये पता होगा तभी आप तैयारी कर सकते हैं समय रहते, और समय रहते अगर आप ट्रीटमेंट देते हैं तो ऑल्दो यू कैन नॉट प्रिवेंट ऑल द मैटरनल मॉर्टेलिटी ऑकरिंग बिकॉज ऑफ दिस, बट येस डेफिनेटली द रेट विल डेफिनेटली फॉल डाउन. नाउ कमिंग टू द डायग्नोसिस, आई जस्ट नाउ टोल्ड यू दैट डायग्नोसिस के पता करने के लिए यू हैव टू बी अवेयर अबाउट द क्लिनिकल कोर्स ऑफ द लेबर इन दैट वुमन. तो अगर आपको क्लिनिकल कोर्स पता है तब आप उसको डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं. साथ ही साथ क्योंकि इसकी जो प्रेजेंटेशन है
वो बाकी जो एनाफिलेक्टिक या सेप्टिक शॉक से बहुत हद तक मिलती है। सो ट्रीटमेंट आपका फर्स्ट तो पहले रिसस्किटेशन ही होगा, मैटरनल जो हम CPR करते हैं वही होगा, एंड देन वी कैन लुक फॉर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। सो सबसे पहले इसकी जो डायग्नोसिस है डेफिनेटली इट इज़ क्लिनिकल डायग्नोसिस, क्योंकि वो इतना क्विक होता है, या तो इट इज़ क्लिनिकल डायग्नोसिस या इट इज़ आपका पोस्टमार्टम। हमें जब मिलता है एविडेंस वो उसकी डायग्नोसिस होती है। सो क्लिनिकल डायग्नोसिस करने में अगर आप सक्षम हैं, अगर आपको मौका मिल रहा है ये डायग्नोज करने का, तो उसमें आपको पता होना चाहिए दो आइदर और। जो क्राइटेरिया है इस समय वो है आइदर और का। उसमें क्या आइदर और क्या और है, पहले तो आपको ये समझना है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर क्लियर कॉज, किसी और क्लियर कॉज के बगैर व्हाट इज़ हैपनिंग, एक्यूट मैटरनल कोलैप्स। अभी हमने देखा मैटरनल कोलैप्स हो रहा है, वो एक्यूट मैटरनल कोलैप्स हो रहा है विद वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। वो वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग क्या है, मतलब किसी और कारण के बगैर आप देख रहे हैं कि देयर इज़ अ मैटरनल एक्यूट मैटरनल कोलैप्स। एकदम से वो अभी तक ठीक थी और एकदम से बिल्कुल वो हाइपोटेंसिव शॉक में चली गई। तो और उसमें कोई और अदर, मान लीजिए शी जस्ट नाउ डिलीवर्ड एंड शी हैड अटोनिक PPH, ठीक, आपकी आंखों के सामने अटोनिक PPH हुआ एंड देन शी लैंड्स इन शॉक। सो यू आर हैविंग द कॉज ऑफ दैट शॉक, क्या वहाँ पे हिमोरेजिक PPH, उसको सॉरी अटोनिक PPH हिमोरेज उसको हुआ है। सो शी हैज़ लैंडेड इन शॉक। जहाँ पे इस तरीके का कोई पहला कॉज आपको नज़र नहीं आ रहा और वहाँ वो वुमेन अचानक से प्रोफाउंड हाइपोटेंशन में चली जाती है, साथ ही साथ उसमें इनमें से जो अब मैं फॉलोइंग बताऊंगी, इनमें से एक या एक से अधिक साथ में एसोसिएटेड चीज़ें हो सकती हैं, जैसे एक्यूट फीटल कॉम्प्रोमाइज़। अब इसमें ये समझने की, मान लीजिए कोई प्रीवियस सिजेरियन का केस है एंड यू हैव केप्ट इट फॉर वेजाइनल बर्थ। अब वो वेजाइनल बर्थ के लिए है, प्रीवियस सिजेरियन है और एकदम से वो शॉक में चली गई, तो आप ये भी देखेंगे ना कि उसका कहीं रप्चर तो नहीं हो गया, यूट्राइन रप्चर तो नहीं हो गया। उस केस में उसका फीटल भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। सो आपको बाकी चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि कोई अदर एकदम से कोई चीज़ उसको नहीं है। मान लीजिए वो गिविंग सेंसेशन की, उसको बहुत पेन है, वो पेन एकदम रुक गया और एकदम से वो हाइपोटेंशन में चली गई, तो उसमें क्या होगा कि हाँ आपको लगेगा कि हाँ मे बी देयर इज़ अ रप्चर ऑफ द स्कार। या मान लीजिए इमीडिएट पोस्ट डिलीवरी उसको क्या हो गया, वो अटोनिक PPH हो गया, तो वो हाइपोटेंशन में चली गई। यहाँ आपको क्लियर कट कॉजेज़ दिख रहे हैं, लेकिन अगर आपको क्लियर कट कॉज कोई नहीं नज़र आ रहा और एकदम सडन उसका हाइपोटेंशन में जा रही है, ऑलवेज कंसिडर दिस योर डायग्नोसिस। और उसके साथ में उसको एक तो एक्यूट फीटल कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए, कार्डियक अरिथमियाज होने चाहिए, हो सकते हैं कोगुलोपैथी भी हो सकती है, कन्वर्जन, हाइपोटेंशन तो हमने अभी देखा है क्योंकि वो शॉक में जा रही है। मैटरनल हिमरेज में ऑकर लेटर पार्ट में, नॉट पहले। अगर हमने PPH के बाद हाइपोटेंशन में जा रही है वो नहीं, लेकिन शॉक के बाद उसको हिमरेज हो रहा है, अगर वो सर्वाइव कर गई तो वो DIC की वजह से उसको हिमरेज होगा। सो ये आपको ध्यान रखना है। और आपको क्या इसमें से एक्सक्लूड करना है, आपको ये एक्सक्लूड करना है कि वुमेन विद मैटरनल, जिनको मैटरनल हिमरेज पहले हुई है इन सब सिम्टम से पहले, वो इस कैटेगरी में नहीं आएगी। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू। तो जो ये जो मैटरनल हिमरेज है वो आपका बाद में होना चाहिए। और इसमें जो एकदम से जो सिम्टम वो कहेगी, व्हाट शी विल से, इफ़ शी इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, वो एकदम से रेस्टलेस और नमनेस, एजिटेशन, टिंगलिंग, एकदम रेस्टलेस हो जाएगी कि सांस नहीं आ रहा और एकदम से वो कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है। या चेस्ट पेन भी बोल सकती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन क्योंकि इसके जो ट्रीटमेंट है वो इन सभी जो हम आगे इसके जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं उन सभी के ट्रीटमेंट में सबसे पहले मैटरनल रिसस्किटेशन CPR आता है। सो दैट इज़ द गुड पॉइंट कि इवन इफ you have diagnosed it wrong, if you have diagnosed something else as amniotic fluid embolism, treatment remains the same, but you should be aware of this entity along with those things. Suppose she is saying कि I am having chest pain and she is already
around more than 35 or 38 years of age. So that 35-38 is a high risk factor we have just read in case of for this amniotic fluid embolism. और हो सकता है आप सोचे कि उसको भाई मायोकार्डियल इन्फेक्शन आया है, so you will call for the medicine people, but always remember आप एक ऑब्स्टेट्रिशियन होने के नाते you keep this in your mind as the first diagnosis and do your work accordingly. So इसके जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं वो सारे ही एक्यूट कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स होते हैं, इसलिए फॉर्चुनेटली उनका जो ट्रीटमेंट है, जो इनिशियल आपका जो ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है वो आपका सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही होता है. जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, देन कार्डियोमायोपैथीज, हार्ट फेलियर, कोई मान लीजिए उसको कोई वल्वुलर हार्ट डिसीज़ है, वो भी उस इमीडिएट डिलीवरी के बाद में आपको हो सकता है फ्लूइड ओवरलोड से उसमें इडीमा हो जाए और उसको ब्रेथलेसनेस हो जाए, वो शॉक में चली जाए. सो ये भी आपका हो सकता है, वॉल्यूम ओवरलोड हो सकता है. नाउ रेस्पिरेटरी जो है पल्मोनरी इडीमा सेकेंडरी टू व्हाट, वॉल्यूम ओवरलोड. देन एक्यूट अस्थमा, उसको पास्ट हिस्ट्री ऑफ अस्थमा है. देन पल्मोनरी एम्बुलस. फॉर्चुनेटली दे ऑल हैव हायर मॉर्टेलिटी एंड इनिशियल ट्रीटमेंट इज़ द सेम फॉर ऑल. नाउ व्हाट इन्फेक्शन हो सकता है, सीवियर सेप्सिस, देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ कोरियमनाइटिस, और डिलीवरी के बाद में मीन्स उसको प्रोलॉन्ग्ड हिस्ट्री ऑफ PROM है, और उसके बाद वो एकदम से शॉक में चली जाती है डिलीवरी के बाद में. सो दीज देन प्री-एक्लेम्शिया, आई जस्ट टोल्ड यू, प्री-एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया, कन्वर्जन हो गई. कन्वर्जन हुई है वो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हाइपोक्सिया की वजह से, आपको लग रहा है कि शी इज़ इन केस ऑफ एक्लेम्शिया और इवन हेल्प सिंड्रोम. तो ये जो हैं आपके एनाफाइलैक्सिस, आपने इमीडिएटली उसको मान लीजिए लिग्नोकेन दिया लोकल एनेस्थीसिया के लिए, और एकदम उसको वो एनाफाइलैक्सिस हो गया, तो वो भी आपका इससे मैच हो सकता है. तो आपको ध्यान रखना है कि एकदम से कोई ड्रग देने के बाद अगर वो उसको लैप्स हुई है, देयर आर मोर चांसेस ऑफ एनाफाइलैक्सिस रैदर एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म. सो दिस इज़ द क्लिनिकल फीचर ऑफ, इट शुड बी केप्ट इन माइंड. और ट्रीटमेंट पार्ट में अब हम देखेंगे कि हमको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं टाइमली. यू शुड बी अवेयर ऑफ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, what treatment you are giving you will be writing in your notes, and because it is associated with the higher mortality rate, definitely इसका आपका audit होगा because of this maternal. So your paperwork should be very much clear what you have done. So जो आप जानेंगे तभी आप करेंगे, और जो आप करेंगे वही आप उसमें नोट डाउन करेंगे. So we'll now just start see about the management. I missed one point जो हमने अभी आपको डायग्नोसिस में मैंने अभी बताया था कि इसमें एक तो या तो क्लिनिकली आप उसको डायग्नोस कर रहे हैं, वन थिंग, एंड अनदर इज़ द पोस्टमार्टम डायग्नोसिस. जब आप पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कर रहे हैं एंड इन लंग्स कट सेक्शन इफ़ यू आर एबल टू फाइंड द फीटल स्क्वैम्स एंड फीटल हेयर, देन इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म. सो इसके दो डायग्नोसिस बनते हैं, एक तो क्लिनिकली एंड सेकेंड वन इज़ पोस्टमार्टम. नाउ कमिंग टू द, हमने डायग्नोस कर लिया, डिफ्रेंशिएट कर लिया. डिफ्रेंशिएट तो बाद में भी होता है, इमीडिएटली आपका डायग्नोसिस के साथ यू मे नॉट बी श्योर कि इट इज़ एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, इट मे बी समथिंग एल्स ऑल्सो, बट बिकॉज इट इज़ ऑल द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, दे आर ऑल कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स एंड दे ऑल हैव द हायर मैटरनल मॉर्टेलिटी. सो द मैनेजमेंट पार्ट इज़ वेरी मच the same. Now coming to management, what is the first thing? You are around her, you have to do a early CPR. Immediately you have to start the resuscitation of the mother and start with the CPR. What is important is time. टाइम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. आप कब तक CPR करते रहेंगे? करते रहो जब तक करना है, जब तक कि वो रिवाइव नहीं होती. नो, यू हैव टू गिव CPR फॉर 5 minutes कंटिन्यूस. आप दे रहे हैं उसको CPR, यू आर ट्राइंग टू रिवाइव हर. सपोज शी रिवाइव्स, देन हर प्रॉस्पेक्ट इज़ वेरी मच बेटर, बट कीप इन माइंड द पॉइंट ऑफ DIC. अगर वो CPR में रिवाइव कर गई ड्यूरिंग इनिशियल 5 minutes, then it is very nice, her prospect of survival increases. And what now, the next complication will be DIC, you have to take care of. Suppose if during the initial 5 minutes आपने जो CPR आप उसको दे रहे हो वो आपका इफेक्टिव नहीं है and she is not revived, so what next? This 5 minutes is very much important, क्योंकि maybe you are not able to save the mother,
but now you have to focus on the child, the baby. So you have to try the CPR for 5 minutes. If she revives, it's very good. If now you have time, but if she is not reviving, what आप क्या करेंगे, 5 मिनट के एकदम से आप पेरीमोर्टम सिजेरियन सेक्शन करेंगे. वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट? लीगली आई एम टेलिंग यू दिस इज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका अगर CPR फेल होता है, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लूज द मदर. ओके, नाउ इन द कोर्ट ऑफ लॉ, अगर आपने टाइमली पेरीमोर्टम सिजेरियन सेक्शन नहीं किया है, सो जो एज़ पर गाइडलाइंस के अनुसार अगर आपने नहीं किया है, सो यू आर ऑल्सो गोइंग टू लूज द बेबी. नाउ द पॉइंट कम्स कि वाई यू हैव नॉट टेकन द स्टेप टाइमली. जो आपका गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए आपने टाइमली स्टेप लिया होता तो कोर्ट ऑफ लॉ में बात आती कि शायद बेबी बच जाता. तो उस पार्ट को ध्यान में रखते हुए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. इफ़ इनिशियल 5 मिनट्स आपका CPR इज़ नॉट रिवाइविंग द मदर, यू गो फॉर क्विक पेरीमोर्टम सिजेरियन सेक्शन. And this perimortem cesarean section is not usually for mother, it is for baby. Now what this perimortem C-section will do? It also improves the chance of mother's revival. How? This is a question you should be aware of. पहली बात तो जब आप बेबी को बाहर निकाल देते हैं तो जो CPR का जो मैकेनिक्स है करने के लिए, यू नो कि जब आपका एब्डोमेन डिस्टेंडेड है, अंदर यूट्रस है, यूट्रस में बेबी है, तो आप अगर ज़्यादा CPR, एक तो आपका लंग्स जो होता है उसका साइज़ आपका कम हो जाता है, वो बिकॉज ऑफ दिस डायफ्रैग्मेटिक एलिवेशन. यू ऑल नो द फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी. यू कैन गो टू द वीडियो थ्रू द प्लेलिस्ट. एक तो पेरीमोर्टम सिजेरियन सेक्शन करके ना हम केवल बेबी के सर्वाइवल प्रोस्पेक्ट्स को बढ़ा रहे हैं, बट ऑल्सो वी आर गिविंग अनदर चांस फॉर द वुमेन टू बी सर्वाइव्ड. फर्स्ट थिंग कि जो सिजेरियन के CPR के मैकेनिक्स हैं, दे बिकम ईजियर व्हेन द बेबी इज़ आउट. सेकेंड थिंग, बिकॉज आपका जो कार्डियक आपका जो रिटर्न है वो वेनस रिटर्न बढ़ जाता है. बेबी आउट होने से जो आपका कंप्रेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रेविड यूट्रस, जो आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, वो सब आपका वापस लोड पहुंचता है हार्ट की तरफ. सो नेचुरली ऑल्सो जो हाइपोटेंशन है वो ऑल्सो इट गेट्स लिटिल करेक्टेड. सो ये जो पार्ट है कि अगर आपका पेरीमोर्टम सिजेरियन सेक्शन आप करेंगे तो एक तो वेनस रिटर्न इम्प्रूव हो जाता है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो मदर की है वो कम हो जाती है, बिकॉज क्योंकि आपने बेबी को निकाल दिया. बेबी की अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, मदर की अपनी है. सो यू आर रिड्यूसिंग द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द मदर. सो इट मे give you some chance that mother may be revived after this perimortem cesarean section. Venous return is improving, so hypotension may be corrected naturally also. कुछ नेचुरल सपोर्ट भी आपको मिलता है. एंड थर्ड वन इज़ जो मैकेनिक्स आपका है वो आपका CPR का वो ईजियर हो जाता है. सो दिस 5 minute पीरियड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. दिस कैन बी आस्क्ड इन MCQ ऑल्सो. Early CPR, initiate immediately CPR, call for help. Then if within 5 minutes you are not able to revive the woman, then go for perimortem CS, cesarean section. It will improve the chances of fetal as well as maternal survival. Simultaneously you have to start the supportive treatment. It means intubation, ventilation, आपका वेनस लाइन से जो है आपको फ्लूइड देना. देन इफ़ रिक्वायर्ड आपको डोपामिन ड्रिप भी लगानी पड़ेगी. सो ऑल दीज आर सपोर्टिव मेजर्स to support the mother during this initial 5 minutes. And if you have the facility nearby, you can go for plasma exchange and hemofiltration, but it depends whether this facility is available at your center immediately or not. If she survives this initial effort, then she has a good prospect of surviving the event. But remember, there are chances of landing her in DIC is still there. So this part, management part, this 5 minute time is very much critical in your paperwork. You have to be very meticulous.
also while you are giving the treatment, and when you give the treatment, you have to write each and every step in your papers also. So your paperwork has to be very much correct, and it will be only correct when you are doing the right steps. So the initial hypoxia insult may be so profound that women may if they survive the initial insult, there may be profound long-term sequelae also, but it is better to survive. Childbearing should not, giving birth to a child should not be as painful that a woman loses her life. Every effort is to save each and every woman we can. So केवल हम अपनी नॉलेज बढ़ाकर अपनी चीज़ों को सही ढंग से समझकर ही सही स्टेप सही समय पे ले सकते हैं. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज़, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसका जल्द से जल्द जवाब दूंगी. और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. और अगर आपको कोई भी टॉपिक और जल्दी जानने की इच्छा है तो प्लीज़ डू राइट इन योर कमेंट बॉक्स. थैंक यू.